Okay, good morning all of you. There are total 15 participants, not only 11 have written the attendance. First, give the attendance in the chat box. Write your class, section, name and roll number in the chat box. Okay, so let us start. कोई बता सकता है कि क्या चल रहा है हमारा? हेलो? Princess September. नहीं, that we have completed is the last time. We have completed Princess Yes, September. sir. Yes. Now we have to start the textbook, and in the textbook, we have completed the last bargain. We have completed. Okay. Next, we have to start the summit within. The summit within. Now there is one word summit. And what is the meaning of summit? Summit means peak of the mountain. Summit means what? Of the mountain. मतलब जो पर्वत की चोटी होती है जिसको हम शिखर कहते हैं, that is called summit. The summit within. अब all of you know that there are summits to the mountains. But the title of the lesson says that there is also one summit within ourselves. हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक समिट होता है जिसके ऊपर हमें चढ़ाई करनी होती है. जिस तरह से हम माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करते हैं, माउंटेन के समिट के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उसी तरह से हमारे मन के अंदर जो समिट होता है उसके ऊपर भी हमें चढ़ाई करनी है. चढ़ाई करनी है मतलब हमारा जो मोटो है, हमारा जो गोल है, हमारा जो ध्येय है, जीवन का जो ध्येय है उसको प्राप्त करना है. चढ़ाई करना है मतलब क्या है? उसको प्राप्त करना है. जैसे कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट, सभी लोगों ने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है? हाँ, तो आज हम क्या करेंगे? द लेसन इज अबाउट माउंट एवरेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ए वीडियो ऑफ माउंट एवरेस्ट. ओके, ओके सर. वीडियो देखना है माउंट एवरेस्ट का. यस सर, देखना है. यस सर. हाँ, ओके. तो सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट का वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं.
Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay, okay. Yes, Just sir. Sir. then see the video Yes, sir. of Mount Everest. Yes, sir. Okay, sir. सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है।
हेलो हेलो, सर देखा वीडियो देखा? यस सर। वीडियो देखा? हाँ सर देखा पर आवाज ही नहीं आ रही थी। देखा? ओके, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करना कितना खतरनाक है, और पहले माउंटेनियर कौन है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे, इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी। तो आई हैव शोन दिस वीडियो ओनली बिकॉज द लेसन इज अबाउट माउंट एवरेस्ट and climbing on the summit of Mount Everest. Summit यानी top of the mountain. तो the title है वो इस तरह से the summit within, जिस तरह से माउंट एवरेस्ट के समिट के ऊपर चढ़ाई करने के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, कुछ इक्विपमेंट्स हमारे साथ लेके जाने पड़ते हैं। There is need of daring to climb on the Mount Everest. Likewise, in the opinion of the writer of this lesson, within ourselves, there is also a mountain. There is also a summit. What is that summit? That summit means our goal, our motto, what we want to become in our life. So to achieve that goal, achieve that motto, it is also difficult. But we have to climb on the summit within us. That is what the writer of this lesson wanted to say. So let us begin. Major HPS Ahluwalia. अब इनका नाम अच्छी तरह से याद रखिए क्योंकि ये जो लेसन है वो उन्हीं के बारे में है। और अगर आप साइड में देखोगे, टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो वहां पे उनका फोटो भी है, मेजर HPS अहलूवालिया का। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In the year 1965, one team was selected and they succeeded in climbing on the summit of Mount Everest. And one of the member of that expedition, of that group, was Major HPS Ahluwalia. तो इंडिया का सबसे पहला ग्रुप था जो 1965 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा था, जो कि सक्सेसफुल हुए थे। बहुत सारे लोग तो मर चुके हैं चढ़ने के चक्कर में, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए थे। और उन्हीं ग्रुप के एक मेंबर है जिनका नाम है मेजर HPS Ahluwalia. How did he feel when he stood on the highest point in the world? माउंट एवरेस्ट का जो समिट है, माउंट एवरेस्ट का जो समिट है, it was considered as the highest point of the world. दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो माउंट एवरेस्ट की मानी जाती है। तो मेजर HPS Ahluwalia जब दुनिया के हाईएस्ट चोटी के ऊपर खड़े थे तब उनको कैसे लगा, उनके मन में कौन सी फीलिंग्स आई? Let us hear his story in his own words. चलो उनकी जो कहानी है उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। क्लाइंबिंग सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ बेटा, वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है ना। आप अपनी हेडफोन लगाओ और उसका वॉल्यूम बढ़ा दो हेडफोन का। हाँ, क्योंकि मैं तो जस्ट सामने बैठा हूँ, लैपटॉप के जस्ट सामने बैठा हूँ। हेडफोन का आवाज बढ़ा दो, हेडफोन का आवाज बढ़ा दो और हेडफोन लगा दो। ओके, सो वेन let us hear his story. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. So climbing on the summit of Mount Everest, of course it is difficult task, but after coming back to climb on the summit that is within you, it is very difficult. एक बार आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करके वापस आते हो तो आपके मन के अंदर भी एक समिट क्रिएट होता है, आपके मन के अंदर भी एक भावना जागती है, इच्छा जागती है
जिसके ऊपर चढ़ाई करना या जिसको सक्सेस बनाना, it is also very difficult in the opinion of Major HPS Ahluwalia. So let us hear his own experience. जब वो चढ़ाई करते हैं तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, वो हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं. I have already told you that to climb on Mount Everest, to climb on the summit of Mount Everest, it is very difficult and it is very, very dangerous, very risky. Many people have lost their lives. जैसे कि अभी हमने वीडियो में भी देखा था, बहुत सारी जो लाशें हैं वहां पे पड़ी है और वो काफी दिनों तक के पड़ी रहती है. वो गलती नहीं है. क्यों नहीं गलती है? क्या रीजन है? क्योंकि वहाँ बर्फ होता है हाँ, बर्फ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ठंड गलती के नहीं. वजह से। और इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो चढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, उनको रास्ते से बहुत सारी लाशें भी लोगों की देखते हैं जो उनके पहले प्रयास कर चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है. जैसे आपने वीडियो में देखा है, जब आप जाते हो तो आपको अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी लेके जाना पड़ता है, एक स्पेशल टाइप के शूज पहनना पड़ता है, बूट पहनना पड़ता है, और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है तो अपने पीठ पर लाद कर आपको लेके जाना पड़ता है. सो इट इज वेरी रिस्की, बहुत ही रिस्की होता है. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस हियर द एक्सपीरियंस ऑफ मेजर HPS Ahluwalia when he climbed on the summit of Mount Everest. So shall we begin? Shall we begin? क्या हम स्टार्ट करें? यस सर. यस अभी सर. देखो 31 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन उसमें से ओनली 29 लोगों ने अपना अटेंडेंस दिया है. बाकी लोगों का अटेंडेंस अभी तक क्या आया नहीं है. जिन्होंने नहीं लिखा है वो तुरंत लिख लेंगे. Okay, let us begin. Of all the emotions which surged, surge यानी क्या है? Arose, suddenly, अचानक मन में आना, surge. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility. Humility means what? State of not thinking you are better than other people. मतलब अपने आप को कम मानना. ह्यूमिलिटी यानी क्या होता है? अपने आप को कम मानना. तो मेजर HPS Ahluwalia here says that when I stood on the summit of Mount Everest, which is considered as the highest point in the world, there came many feelings in my mind. And among these feelings, there was one dominant or main important feeling. And that feeling was humility. मतलब अपने आप को ऊंचा नहीं मानना, अपने आप को बड़ा नहीं मानना. अब देखो ये बड़ी अजीब बात है कि इतने बड़े सक्सेस मिलने के बाद भी उनके मन में ह्यूमिलिटी की फीलिंग क्यों आई. मतलब उनको क्यों लगा कि दुनिया में सबसे बेटर वो नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग वो नहीं है. क्यों उन्हें लगा कि वो कंपेयर टू द वर्ल्ड दे आर वेरी वीक. वो अपने आप को कमजोर क्यों मान रहे थे? देयर इज रीजन. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर. जब वो आखिर में पहुंचे तो उसका जो शरीर है, उनका जो फिजिकल पर्सनैलिटी है, उनका शरीर उनको कह रहा था, या भगवान को थैंक यू गॉड कह रहा था कि आखिर में वो पहुंच गए. उनके फिजिकल नहीं, उनके फिजिकल स्पिरिट नहीं, उनके बॉडी ने गॉड को सबसे पहले थैंक यू कहा, क्योंकि इतना रिस्क होने के बावजूद भी वो आखिर में सक्सेसफुल हुए थे समिट के ऊपर चढ़ने के लिए. However,
Instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. अब आपको लग रहा होगा कि जब एचपीएस अहलूवालिया माउंट एवरेस्ट के ऊपर उन्होंने चढ़ाई फतेह कर ली, तब वो बहुत ही खुश हुए होंगे, जुबिलेंट फीलिंग उनके मन में आई होगी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। जब वो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हुए तो उनके मन में सैडनेस की फीलिंग आई। सैडनेस यानी दुख, दर्द। अब सैडनेस की फीलिंग क्यों आई? वो खुश क्यों नहीं थे? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? अब वो सोच रहे कि उनके मन में सैडनेस की फीलिंग क्यों आई? क्या इसलिए तो उनके मन में सैडनेस की फीलिंग नहीं आई क्योंकि अब उन्होंने he was succeeded in climbing on the highest peak of the world. Now there was nothing that was higher than that place. All the roads from there were going downwards. There was not a single road which was going upward. एक भी रास्ता ऐसा नहीं था जो ऊपर की तरफ जा रहा था, सभी रास्ते नीचे की तरफ जा रहे थे। अब दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं बची थी जो उससे ऊंची हो। जब उनको ये पता चला कि जो अल्टीमेट हाईएस्ट पॉइंट है दुनिया का, वो मैंने फतेह कर लिया है, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है फतेह करने के लिए, या चढ़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट या प्लेस नहीं बची है जो इससे भी ऊंची हो। क्या इसकी वजह से उनके मन में सैडनेस की फीलिंग आई? He was thinking. एचपीएस अहलूवालिया was thinking. आपको क्या लगता है उनके मन में सैडनेस की फीलिंग क्यों आई होगी? हेलो, आपको क्या लगता है उनके मन में सैडनेस की फीलिंग क्यों आई होगी? क्या लगता है आपको? बताओ, बोलना है आपको। उनके मन में सैडनेस की फीलिंग क्यों आई होगी? हेलो, अरे सुनाई दे रहा है क्या? हाँ आप बताओ ना भैया, बताओ तो, बोलना तो पड़ेगा ना क्लास में। उनके मन में उसकी भावना क्यों आई होगी? कुछ गेस तो करो। हेलो हेलो, हाँ सर। बताओ। सर। पायल, यस सर। बताओ। यस सर। क्यों उनके मन में दुख की भावना आई होगी? क्या लगता तुम्हें? अरे कुछ तो बताओ, गेस तो करके बताओ। गलत होगा तो होगा क्या? हाँ बताओ। हेतवी झाला, बताओ। मुझे तो ये तो बताया है। ओके, चलो हम मान लेते हैं कि उनके मन में आया होगा कि अभी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची ऊंची जहाँ पे मैं चढ़ाई कर सकूं। ओके, आगे बढ़ते। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप माउंट एवरेस्ट की समिट के ऊपर चढ़ते हो, तब आपका जो मन है, your mind and heart was full of joy and thankfulness. आपके मन में खुशी होती है, उसी तरह से थैंकफुलनेस की भावना भी आती है, धन्यवाद देने की भावना भी आपके मन में आती है। It is a joy which lasts a lifetime. और वो जो जॉय है, वो जो आनंद है, वो आनंद तुम्हारे लाइफ टाइम रहता है। That becomes your treasury. आपका खजीना बन जाता है, जो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। आप उस जॉय को कभी भूल नहीं पाते हो। It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. When you come back after climbing on the summit of Mount Everest, when you came back,
The experience of climbing on the summit of Mount Everest changes you completely. आप पूरी तरह से बदल जाते हो। जब वापस जाते वक्त अलग रहते हो, आने के बाद आप टोटली आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। The man who has been to the mountains is never the same again. जो भी आदमी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते वापस आता है वो वैसा का वैसा नहीं रहता है। उसके पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। अब ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जब वो चढ़ाई करते हैं तो उनको उस तरह का एक्सपीरियंस आता है, एंड दोज एक्सपीरियंसेस चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ द माउंटेनियर। जो माउंटेनियर होता है, चढ़ाई करने वाला वो जो होता है, उसको वो जो एक्सपीरियंस है वो टोटली उसको चेंज कर देते हैं। ओके, as I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो यहाँ पे मेजर एक्सप्रेस अहलुवालिया कहते हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट से चढ़ाई करके वापस आया, then I felt that there is also a second summit, and that is within us, that is in our mind. And to climb on the summit that is situated in our mind, it is very formidable. It is not less formidable. It is not less dangerous than the summit of Mount Everest. मतलब हमारे माइंड के अंदर जो समिट होता है उसके ऊपर चढ़ाई करना, या हमारे माइंड में जो इच्छाएं होती है उसको पूरा करना, it is also very dangerous. It is also very difficult. It is as difficult as climbing on the summit of Mount Everest. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जब अहलुवालिया वापस आ रहे थे, चढ़ाई करके वापस आ रहे थे, तब उसका जो फिजिकल एक्सर्शन है वो पूरी तरह से चले गया था, थकान जो थी वो पूरी तरह से चली गई थी। फिर भी वो अपने आप को एक क्वेश्चन करते हैं, why did I climb on the Mount Everest? मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई मैंने क्यों की? What is the reason? Why did I climb on the summit of Mount Everest? Why did the act of, the question why I climbed Everest, why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? And he also thinks that why the feeling of climbing on mountain is not leaving his mind. उसके माइंड से वो जो फीलिंग्स है या जो एक्सपीरियंस है वो क्यों नहीं जा रहा है? उसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई क्यों की? And I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? हमेशा मेरे इमेजिनेशन में, मेरे कल्पना में माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने का जो एक्सपीरियंस है वो क्यों रहता है? It was already a thing of the past, something done yesterday. वो सोची, वो विचार ही मेरे मन से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो वो पुरानी बात होगी। अब तो मैंने उसको क्लाइम करके मैं वापस भी आ गया, घर में वापस आ गया, लेकिन फिर भी वो जो सोच है या वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे माइंड से बाहर क्यों नहीं जा रहा है? Something done yesterday, with every passing day, it would become more removed, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? तो धीरे धीरे जो है एक्सपीरियंस पुराना होते जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा। क्या मेरी जो मेमोरी है, मेरी जो यादें है, क्या वो पूरी तरह से भूल जाएगी? ये जो एक्सपीरियंस है, क्या वो एक्सपीरियंस में कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से मैं इसको भूल जाऊंगा? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब ये सभी क्वेश्चन आने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि लोग आखिर में माउंटेन के ऊपर चढ़ते ही क्यों हैं?
क्या रीजन है कि लोगों को माउंटेन के ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है? उनमें एक क्रेज होता है, उनमें एक लगन होती है कि हाँ मुझे माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई करनी। क्यों? Why? It is not easy to answer the question, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं होगा कि लोग माउंटेन के ऊपर क्यों चढ़ते हैं। The simplest answer would be, as others have said, because it is there. अगर इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर हम देंगे तो वो ये होगा, अरे माउंट एवरेस्ट, सॉरी, माउंटेन के ऊपर लोग क्यों चढ़ते हैं? क्यों चढ़ते हैं? इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वहां पे माउंटेन्स है। अगर माउंटेन्स नहीं होते तो लोग नहीं चढ़ते। लेकिन ये कैसा आंसर हो जाएगा? वेरी सिंपल आंसर। It presents great difficulty. Actual reason why people climb on mountains is that mountains represent difficulties. माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करना मतलब क्या है? एक डिफिकल्ट टास्क है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स यानी अड़थड़ा जो बीच में आता है ना, काम के बीच में, ऑब्स्टेकल्स। और ह्यूमन बींग्स ऐसे प्राणी हैं जिनको ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में, ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी इंटरेस्ट होता है। उन्हें एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर उनके सामने कोई ऑब्स्टेकल आया है, कोई ऑब्स्टेकल्स आया है और उसको सॉल्व करने में या उसको ऊपर विजय प्राप्त करने में उन्हें काफी खुशी महसूस होती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। अब देखो, माउंटेन के ऊपर जब भी आप क्लाइंबिंग करते हो तो आपके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो फिजिकल होंगे। कहीं पे गहरी खाई होगी, कहीं पे कुछ पकड़ने के लिए नहीं होगा, कहीं पे सिर्फ मिट्टी होगी, कहीं पे सिर्फ कांटेले झाड़े हो गया। इस तरह से ये जो ऑब्स्टेकल्स है वो फिजिकल है। ए क्लाइंब टू ए समिट मींस एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अगर आपको माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करनी है तो ये तीनों क्वालिटी आप में होनी चाहिए। कौन कौन सी तीनों क्वालिटी है? एक तो है एंड्योरेंस, दूसरा है परसिस्टेंस और तीसरा है विल पावर। एंड्योरेंस मतलब सहन करने की शक्ति। परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यू, कोई भी काम कंटिन्यू करने की एबिलिटी। एंड विल पावर, हमेशा गनावा, हेलो। पहला है एंड्योरेंस, दूसरा है परसिस्टेंस एंड थर्ड है विल पावर। तुम्हारा जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। If you want to climb on a mountain, you must have these three qualities. The three qualities are endurance, सहन करने की शक्ति, persistent, कंटिन्यू करने की शक्ति, कंटिन्यू काम करने की शक्ति, एंड विल पावर, तुम्हारी मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. जब आप माउंटेन के ऊपर क्लाइंबिंग करते हो तो ये तीनों भी क्वालिटी को हमें दिखाना होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। और जब हम एंड्योरेंस दिखाते हैं, परसिस्टेंस दिखाते हैं, स्ट्रांग विल पावर दिखाते हैं तो आदमी को खुशी होती है। और इसीलिए शायद लोग जो है, इसलिए शायद लोग इसके ऊपर चढ़ाई करते हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करते हैं। ओके, लेट अस स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू टुमारो। So at the outset there were 31 students, but now there are only 21 students. What is the reason? 34 लोग थे, 34 में से अभी 21 ही बचे। तो मैं ये 21 का फोटो निकालता हूँ और बाकी लोगों को अब्सेंट बताता हूँ, ठीक है? बाकी सब लोग अब्सेंट रहेंगे। अभी जो प्रेजेंट है 21 या 20 लोग, उन्हीं की प्रेजेंट ही लगी।